Hello. So, dear students, welcome back. In this video, we will discuss cube root of unity. Okay. In last lectures, we discussed Euler form of complex number, and we have finished all the three forms of complex number: Cartesian form, polar form, and Euler's form. Okay. Now, in this particular video, we will see very important the cube root of unity. That is cube root of unity. Cube root of unity मतलब we have to find out the cube root of 1. So the question is how to find out the cube root of 1. So let us suppose that z equal to cube root of 1. So that will give z cube equal to 1. That will give z cube minus 1 equal to 0. So as you can see that this is the equation in z, and z cube minus 1 equal to 0. Therefore, there will be total 3 roots of this equation z cube minus 1 that is equal to 0. Fine. So, this can be factorized as z minus 1 into z square plus z plus 1 that is equal to 0. Fine, by using the a cube minus b cube formula. Okay. So that will give us this z minus 1 equal to 0 and z square plus z plus 1 that is equal to 0. Fine. So from here you will get z equal to 1. So z equal to 1 is one of the root of this equation z cube equal to 1 or z cube minus 1 equal to 0. So z equal to 1 satisfies this equation. There is no problem with that. And hence one of the cube root of unity is 1. Now come to this equation, z square plus z plus 1 that is equal to 0. Fine. So these equations can be solved by using the quadratic formula. So z equal to minus 1 plus minus square root of b square that is 1 minus 4ac that is 1 minus 4 divided by 2. This is plus and minus. So z equal to minus 1 plus minus square root of minus 3. Square root of minus 3 can be written as minus 1 plus minus root 3 into root minus 1. Isn't it? Divided by 2. This square root of minus 1 replaced by iota. So z equal to minus 1 plus minus root 3 iota divided by 2. Right. So from here we have the 2z, z equal to minus 1 plus root 3 iota by 2 and z equal to minus 1 minus root 3 iota by 2. So these two in with this one z equal to 1. So there are 3 roots of this equation z cube minus 1 equal to 0, or you can say that these 3 are the cube root of unity. Fine. अब इसके बाद में इसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज रहेगी, और वो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज क्या है उसको हम चेकआउट करते हैं. पहली बात तो ये देख लिया कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसके 3 आंसर्स आए हैं, और 3 आंसर में पहला आंसर तो 1 है, दूसरा आंसर ये माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 है, तीसरा आंसर ये माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 है. अब इसको देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा. ठीक है, इन दोनों को देखिए तो बहुत सारे आपके दिमाग में बात अभी आ रही होगी. सर पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है, ये एक प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. और क्या आइडियाज़ आ रहा है दिमाग में, आप देखेंगे माइनस 1 प्लस है और यहाँ माइनस 1 माइनस है. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ है, मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो ये z कॉन्जुगेट है. लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें इसमें आने वाली है अभी. तो आप क्या कर लीजिए, पहले तो इसको नोट आउट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं. So there are 3 answers of cube root of unity.
number 1, number 2 and number 3. These are the answers of cube root of unity. This topic is very important and 100% sure topic. Means you will get the questions in each exams, okay, like mains, NDA, MSCT, advanced, everywhere. So definitely we will take 2 lectures on this particular topics. Okay, here we will discuss all the properties related with the cube root of unity, and of course we will solve some problems, but the more problems we will solve in the next lecture. Okay, so that जितने भी डिफरेंट वैरायटीज के प्रॉब्लम्स है वो आप देख सके. ठीक है, फाइन. तो अब आगे बढ़े इससे. तो अब यहाँ खास बात क्या है, अब आप ये रूट्स को देखना. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो रूट्स आया है ये 1 तो ठीक है, दूसरा आया था -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और तीसरा आया था -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2. अब इनको चेकआउट करते हैं. अब इसको ना एक नोटेशन नया दे रहा हूं मैं, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं. अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. ओमेगा क्या दिया, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ये -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 को मैंने ओमेगा स्क्वायर दिया. अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर देने के पीछे भी रीजन है, वो सारी चीज इसके प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे. और ये 1, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स होंगे. द आंसर इज 1 ओमेगा and omega square. So these are the 3 roots, cube root of unity. Correct? Or you can say that these are the 3 roots of this equation z cube minus 1 equal to 0. Right? Instead of z you can write x also, but z लिखने के पीछे रीजन वही है. क्या रीजन है कि आप देख सकते हैं कि एक प्योरली रियल नंबर आया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए. फाइन. तो अब डियर स्टूडेंट्स आगे इसकी बात को करते हैं कि आप देखिए कि इसको मैंने ओमेगा से नाम दिया है और ये इसका कॉन्जुगेट है. तो अब यहाँ से प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है. चलिए प्रॉपर्टीज को अब हम नोट करते हैं. ठीक है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अब इसमें मैं क्या आपको सारी चीजें बताऊंगा, जो जनरली एंट्रेंस में पूछते हैं उस सारी प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट करेगा. साइकोलॉजिकली कैसे टेस्ट करेगा उसको भी मैं चेकआउट करता हूँ. तो देखिए एक तो 1 आ गया, दूसरा ओमेगा आ गया. ओमेगा को मैंने -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 दिया. दूसरा ओमेगा स्क्वायर आ गया, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2. ये ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है, इसीलिए ये नोटेशंस हमने यूज किया. तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा. ठीक है साहब, फाइन. तो अब वो ऐसे नहीं पूछेगा, अब आपको यहाँ पे प्लस और माइनस में टेस्ट करेगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन आता है ना वो इसी से आता है. तो क्या होता है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं माइनस ओमेगा. तो देखो माइनस से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस √3 आयोटा बाई 2 होगा. अब आप देखेंगे जब ये 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 आता है तो डेफिनेटली एग्जाम में कंफ्यूज होगा. कई लोगों को लगेगा ये ओमेगा है लेकिन ये माइनस ओमेगा है. तो यहाँ पे वो टेस्ट करता है और ज़्यादातर इसी में क्वेश्चन बनाता है. वैसे ही ये क्या होगा उसको देख लीजिए. ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं माइनस करूंगा तो 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होगा. तो वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में क्वेश्चन नहीं पूछता, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर में पूछता है. अब इसी को मैं दूसरे इक्वेशन में, अभी आपने z² प्लस z प्लस 1 लिखा था. अब आते तो पहला चीज को देखिए, अगर इक्वेशन ऐसा है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं. तो इसके रूट्स क्या होंगे, पहला रूट्स देखिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा. करेक्ट है ना. तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो गया. मतलब यहाँ से एक x तो आ जाएगा ओमेगा और दूसरा x आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर. ठीक है कि नहीं.
हाँ, क्यों -1 प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू को ओमेगा दे दिया और -1 माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू को ओमेगा स्क्वायर नाम दे दिया। और मैंने आपको ये भी बोला है कि वो सेकंड वाले को ओमेगा स्क्वायर क्यों किया या पहले वाले को ओमेगा क्यों किया, उसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है। अगर आप ओमेगा मैंने पहले वाले रूट्स का स्क्वायर करते तो सेकंड वाला आ जाता है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ को नोट कर लीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इक्वेशन अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आते, यहाँ जब आप एक्स निकालेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस वन आ जाएगा, प्लस माइनस ठीक है, तो वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ में आ जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाई 2। अब आप देखिए यहाँ से दो रूट्स मिल रहे हैं, दो रूट कौन कौन से मिल रहे हैं, एक 1 प्लस रूट थ्री आयोटा बाई 2 जिसको कि हमने क्या लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ दूसरा क्या मिलेगा 1 माइनस रूट थ्री आयोटा बाई 2। 1 माइनस रूट थ्री आयोटा बाई 2 को क्या लिखा है माइनस ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको इक्वेशंस को नोट कर लीजिए और इन इक्वेशंस में कौन कौन से रूट्स है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस इक्वेशन का है और माइनस ओमेगा स्क्वायर किसका, ये तो आपको ब्रेन में फिट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसमें पूछेगा, वो इस इक्वेशन में पूछेगा, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर में। तो पहले ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो फाइनली अब आप इस चीज को नोट कर लिया, तो दैट इज, अब ये फाइनल रिजल्ट आपको मैं लिख रहा हूँ। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है तो रूट्स हो जाएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नंबर वन, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है तो रूट्स हो जाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट में मैंने बता दिया, ये हमेशा याद रखिए कि ये प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है तो रूट्स माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन इसके ऊपर मैंने बहुत सालों से लगातार रिपीटेड क्वेश्चन देखे मेंस लेवल पर, रिपीटेड क्वेश्चंस इस माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा के स्क्वायर में। क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है, आप पढ़ के जाते हैं, बाद में जल्दी जल्दी में पेपर में ये एरर कर सकते हैं आप, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू ओमेगा है, लेकिन आप 1 माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू को ओमेगा लिख सकते हैं और सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। गॉट द पॉइंट्स? तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर वन पॉइंट्स, ठीक है साहब। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स के ऊपर, दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये पहली प्रॉपर्टी के रूप में मैंने बोल दिया। दूसरा आप देखेंगे ओमेगा का कॉन्जुगेट करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आता है, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करते हैं तो ओमेगा आता है, और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। देखिए इसका अगर आप कॉन्जुगेट करेंगे तो ये तो रियल नंबर माइनस वन है, ये इमेजिनरी पार्ट अपना साइन करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी में भी वैसे ही ये काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। नंबर वन पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी। अब तीसरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पे भी आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में आप देखेंगे ओमेगा की क्यूब वन हो जाती है। ओमेगा की क्यूब वन कैसे होती है वो भी बता देते हैं। तो देखो ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा क्यूब का मतलब यही है, ये ओमेगा क्यूब हुआ कि नहीं हुआ। अब ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा, ये कैसे वन आता है, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे वन आता है वो देखेंगे, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर को ये देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू ओमेगा बार, करेक्ट है कि नहीं। अच्छा क्यों, अब ओमेगा और ओमेगा कॉन्जुगेट जेड इंटू जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ ओमेगा वन होता है। तो देखिए मॉडुलस ऑफ ओमेगा आते हैं, मॉडुलस ऑफ ओमेगा आएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर होगा, करेक्ट है। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन दैट इज इक्वल टू वन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये एक्चुअली में आपके यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, नोट डाउन, इसको भी नोट कर लीजिए।
ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज ये हो गया, these are unimodular complex number. तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लीज नोट इट। ओके फाइन। तो क्या देखा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है कि नहीं। चाहे वो ओमेगा हो चाहे वो ओमेगा स्क्वायर हो, दोनों का अगर मॉडुलस लेंगे तो वो सिंपली 1 आएगा, ठीक है साहब। अच्छा, और एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सिंपल है ये 1 हो गया, प्लस ये और प्लस ये, देखो ये प्लस √3i/2 है और ये माइनस √3i/2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है -1/2 और यहाँ है -1/2, इस -1/2 और -1/2 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा, और उधर +1 है तो 1 -1, तो ओवरऑल ये 0 आ गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स को, खास करके कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब ये रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इक्वेशन रहेगा, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन इज ऑलवेज कमिंग टू बी 0, ठीक है कि नहीं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक चीज को और देख लेते हैं इसी में से, क्योंकि W³ इक्वल टू 1 है, मतलब W इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ओमेगा को आप 1/ओमेगा स्क्वायर, एक तो ये चीज, दूसरा ओमेगा स्क्वायर को 1/ओमेगा, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन सबको डिस्कस कर लिया है। अगर आप देखेंगे तो क्या पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ये देखा है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उसके 3 आंसर्स है। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर आ गया -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, जिसमें से 1 प्योरली रियल है, और ओमेगा स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसमें कि आप ये ओमेगा लिखे तो इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर देगा, या इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर देगा, करेक्ट है, फाइन। उसके बाद वो इसको नहीं पूछता। अब आप देखेंगे कि ये किसके इक्वेशंस, किसके रूट्स है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में रूट्स है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट्स है x² प्लस x, अब x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के। तो ये बाई हर्ट ही होना चाहिए, तो आपका कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसमें ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछता है। फिर दूसरा हमने ये देख लिया कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, पहले यूनिमॉड्यूलर है, कॉन्जुगेट भी है। ओमेगा का कॉन्जुगेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, करेक्ट है। और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 4 क्या होगा, ओमेगा की पावर 5 क्या होगा, ओमेगा की पावर 6 क्या होगा, ये चीज को हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज देख लिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक चीज को नोट करना, जब भी 1/ओमेगा स्क्वायर आएगा ओमेगा से रिप्लेस कर देना, जब भी ओमेगा स्क्वायर आएगा 1/ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देना। तो इतने सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टीज भी हो गई लास्ट में कि ओमेगा की पावर अगर 3n है, 3 के मल्टीपल्स में, n नेचुरल नंबर है तो ये 1 होगा। अगर 3n प्लस 1 है तो डेफिनेटली ये होगा, और अगर 3n प्लस 2 है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। और इसीलिए ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2, इसको करेंगे तो ये आंसर हमेशा 0 देगा, करेक्ट है कि नहीं। प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब आप देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आएंगे और कैसे आपको थोड़ा सा स्मार्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं, फाइंड 1/ओमेगा। फर्स्ट वन इज फाइंड 1/ओमेगा और 1/ओमेगा का स्क्वायर। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी रहेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो अब क्या करो, आप क्रॉस क्रॉस मत करो। 1/ओमेगा को क्या लिख दो, सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर, और 1/ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दो, ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का आंसर आ जाएगा -1। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 से मैंने ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर निकाला, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/ओमेगा निकाला। ठीक है कि नहीं, तो 1/ओमेगा को रिप्लेस कर दिया ओमेगा स्क्वायर से, 1/ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको यहाँ यूज कर लिया, ये आंसर आ गया। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर क्यूब। अब आप क्या करो, क्यूब का फार्मूला मत लगाइए, क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आप फिर से यहाँ से ये यूज कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो सकता है, -ओमेगा। तो सिंपली ये -ओमेगा का क्यूब, क्यों, क्योंकि मैंने ये यहाँ से यूज किया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को -ओमेगा लिख दो। अब ये माइनस का क्यूब माइनस और ओमेगा का क्यूब 1 हो जाता है, तो फाइनली आंसर आ गया -1। प्लीज नोट इट। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइन, तो इसके वैल्यू के लिए भी अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, तो ये -ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होगा, जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, वहां से मैंने यूज किया। तो ये सिंपली -2 ओमेगा का क्यूब होगा। -2 का क्यूब तो -8 हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब 1 हो जाता है, फाइनली आंसर -8 होगा। डियर स्टूडेंट, करेक्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब मैं आ गया फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड 1 - ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब प्लस 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब तो समझ में आ गया कैसे करना है। ओके, यहाँ पे देखो ये माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर और फिर इसका पूरे का क्यूब। ठीक है, यहाँ आते ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी भी किया था मैंने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल में -ओमेगा और ये -ओमेगा का क्यूब। ठीक है, ये वापस से -ओमेगा होगा, -ओमेगा होगा, सॉरी -1 होगा, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ -1 का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 ओमेगा का क्यूब। तो ये तो हो जाएगा बेटा 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा -8 ओमेगा क्यूब। 2 का क्यूब 8 और ये ओमेगा क्यूब 1 होगा, तो -8, फाइनली आंसर 0। ठीक है, क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस आगे धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये आ गया 1 + 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, 3n, माइनस 1 + ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, 3n। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे इसके इंटरेस्टिंग है। अभी तो मैंने सिंपल से क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें आपको वो जो प्रॉपर्टीज़ है उनको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद में मैं फिर जेई लेवल के सारे क्वेश्चंस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। करेक्ट है, जैसे मैंने बोला था कि इसके ऊपर 2 लेक्चर्स होंगे, अब इसके बाद कंप्लीटली जेई लेवल के प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, तो अब ये देखिए 2 ओमेगा है, तो ओमेगा दे दीजिए इसको, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ऐसे कर दीजिए तो आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के ये 0 हो गया, तो खाली ओमेगा की पावर 3n, यहाँ तक के फिर 0 हो गया, तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर
3n। अब ये ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल्स में है, तो ये तो 1 आ गया, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? इसको पहले क्या करो, क्यूब ये वाला इधर दे दो और ये 2n कर दो, एक ही बात है। या आप ये बोलो 3 के मल्टीपल्स में ही आने वाला है, करेक्ट है, तो ये वापस से 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा। चलिए प्लीज नोट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस रूट -3। अब आपको टेस्ट कर रहा है और इसकी पावर 100। अब धीरे धीरे टेस्ट ज़्यादा स्टार्ट हो रहे हैं। -1 माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर 100। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। हाँ, अब क्या होता है ना, अभी आपको आयोटा का कॉन्सेप्ट याद हो गया है। आयोटा आयोटा देखते रहते हैं, तो उसने जैसे जिसको आपने आयोटा लिखा था ना, वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। मतलब ये √3 आयोटा है, करेक्ट है, तो ये -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है, इसका 100, और ये -1 माइनस √3 आयोटा है, इसका 100। ये एक्चुअली में ओमेगा है, तो इसका 100, और ये एक्चुअली में ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका 100, करेक्ट है कि नहीं? अब इसका 100 है, 3 से मतलब रिमाइंडर तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 33 + 1, करेक्ट है कि नहीं? तो बाद में ओमेगा आने वाला है। वैसे ये 200 हो जाएगा, तो 3 × 66 + 2 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? ओके, तो ये फाइनली ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ गया -1। गॉट द पॉइंट? ठीक है, फाइन। तो अब इस लेक्चर में मैं एक लास्ट प्रॉब्लम कराता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, और अभी ये लास्ट प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ठीक है साहब, अब आपके ट्विस्ट स्टार्ट हो गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड नहीं है, पावर 34 प्लस -1 माइनस √3। ठीक है, ऐसे लिख दिया पावर 34। तो थोड़ा ट्विस्ट इसने स्टार्ट कर दिया है। तो देखो, ये तो -1 प्लस √3 आयोटा, यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ओमेगा हो जाएगी, और ये हो जाएगा 34। अब ये माइनस यहाँ दिया है, मतलब ये आयोटा है, मतलब -1 माइनस √3 आयोटा है, तो इसकी भी वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, करेक्ट है कि नहीं? और फिर इसकी पावर 34, तो 2 की पावर 34 और ये ओमेगा की पावर 34 होगा, 2 की पावर 34 और ये ओमेगा की पावर जो होगी वो 868, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है सर, 2 की पावर 34 तो कॉमन ले लीजिए, तो ओमेगा क्या 3 से डिवाइड कर दीजिए 34 को, +1 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 + 2 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली ये हो जाएगा 2 की पावर 34 और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 34। ये आपका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे ट्विस्ट है, इसमें ही आपको पकड़ने की वो कोशिश करेगा हमेशा के लिए। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि x² + x + 1 = 0 के रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ये अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है, ठीक है? इसके प्रॉब्लम्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसमें ओमेगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ से माइनस ओमेगा निकल जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा, करेक्ट है? ओमेगा क्यूब हमेशा 1 आता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में सारे जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे, एडवांस के या मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं लिखूंगा। और मैंने जैसे बोला है कि मैं आपको हर साल मेंस लेवल पे या एडवांस लेवल पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस रिपीटेडली देखता हूँ, मतलब 100% श्योर है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है?
खास करके डिटर्मिनेंट पे यूज़ कर लेता है। अगर एडवांस की बात करें, मेंस लेवल में भी डिटर्मिनेंट पे ओमेगा की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू, ये आई का अलजेब्रा और ओमेगा की अलजेब्रा दिखता है। आई के अलजेब्रा में हम 4 से डिवाइड करते हैं और ओमेगा की अलजेब्रा में हम 3 से डिवाइड करते हैं। करेक्ट है कि नहीं? जो भी पावर रहेगा उसको निकालने के लिए। फाइन।